In the last lecture we did about the triplet representation. That means if I am having m cross n matrix and there are more number of zeros than non-zero numbers, then it becomes no wastage of memory to allocate for all the elements, because zero elements will not have any value. So even if I do addition, multiplication or any operation with that matrix or that particular cell, it will be giving me a zero value only. So we are wasting memory unnecessarily on that zero value one. So how to avoid that? Avoid that, they came up with the concept called as triplet representation. Here what happens is that you are having rows, column and values. In rows, you are mentioning which row and which column what value is there. Which row, which column, what value is there, and remaining all other values of rows and column are zero. बराबर है everyone? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो 0th रो और 4th कॉलम में 9 है, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 8 है, फिर सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में सेकेंड रो 0th कॉलम में 4 है और सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में 2 है. सिमिलरली फिर यहाँ पे कौन सा रो आएगा, ये थर्ड रो एंड फिफ्थ कॉलम में 5 है एंड फोर्थ रो एंड सेकेंड कॉलम में 2 है. एवरीवन, दिस इज व्हाट वी हैड डिड लास्ट टाइम. Yes, sir. Yes, sir. एंड दिस एक्सप्लेनेशन वाज ओवर देयर. ओके, ये भी हो गया था पढ़ के. Yes, sir. Then we'll continue with the next one. That is linked representation. In linked representation, we use linked list data structure to represent a sparse matrix. In this linked list, we use two different nodes, namely header node and element node. Header node consists of 3 fields and element node consists of 5 fields, as shown in the image. दिख रहा है? Index value, down and right, and element node, row value, column value, and value, down or up or right. That means, just check over here. यहाँ पर क्या काम है कि ये जो है लिंक्ड रिप्रेजेंट मतलब लिंक्ड लिस्ट की तरह रहता है. लिंक्ड लिस्ट में कितने ये होते हैं कॉलम्स. एक अगर नोड है मेरा, हमने जो लिंक लिस्ट पढ़ा अभी, उसमें कितने कॉलम्स थे, कितने पार्टीशन थे नोड के अंदर? 2. व्हाट वर दे? Address or data. डेटा एंड लिंक और डेटा और एड्रेस. सेम वे हियर आल्सो. अगर तुम देखोगे यहाँ पे ये जो इंडेक्स वैल्यू है, this index value is nothing but my data, and down or right this is nothing but my address. That means it has to go right or it has to go down, because here I am writing right मतलब क्या है, ये रो है. right मतलब रो व कॉलम वैल्यू और डाउन मतलब कॉलम वैल्यू, क्योंकि ये हम लोग मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना. यहाँ पे इन लिंक लिस्ट वी यूज लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर. हम लोग ये यूज कर रहे हैं लिंक्ड डेटा स्ट्रक्चर, लेकिन इसको क्या रिप्रेजेंट करने के लिए? मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स में क्या रहता है, वैल्यूज हम लोग कैसे फेच करते हैं? रोज एंड डेटा, रोज एंड कॉलम में. तो अगर रो है तो वो हॉरिजॉन्टली रो रहता है और वर्टिकली कॉलम रहता है. तो मेरे को यहाँ पे वही दिखाना रहेगा, दैट इज द राइट साइड एंड द डाउन साइड. इंडेक्स वैल्यू मतलब इंडेक्स वैल्यू ये है मेरा, फिर उसके राइट में मतलब वैल्यू क्या है. सपोज जैसे यहाँ पर था 9, इंडेक्स वैल्यू 9 है, लेकिन राइट में कितना जाने का है? राइट में जाने का है 2 और डाउन में कितना जाने का है? 3. यानी कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम में मेरा वैल्यू 9 है. समझ में आया? Yes, sir. सेम वे विद एलिमेंट नोड. रो कौन सा है, कॉलम कौन सा है, उसका वैल्यू कौन सा है, फिर इसको जाना कहाँ है, ये है मेरा एलिमेंट का नोड.
ये मेरा सिर्फ इंडेक्स वैल्यू दिया गया है, ये इंडेक्स वैल्यू पे इतना राइट इतना लेफ्ट जाने का, डाउन जाने का, और वहां पे जाने के बाद तुमको ये एलिमेंट नोड को सर्च करना है। सो दैट इज ये रो में, ये कॉलम में ये वैल्यू है। क्लियर एवरीवन विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. इम्प्लीमेंटिंग अदर डेटा स्ट्रक्चर्स, ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, पढ़ लो फटाफट। Anything that can store data can be called as data structure. Primitive data structure, that is primary data structure, is primitive data structure, the basic data structure that directly operate upon the machine instructions. मतलब जो भी instruction मिला है directly उसको operate करेंगे। They have different representations on different computers. जैसे कि integer, floating point number, character constant, string constant, pointers, they all comes under these categories. Non-primitive, they are complicated data structures and derived from primitive. They emphasize on, that is focus on grouping same or different data items with relationship between each data item. That is arrays, lists and files come under this category. What is an array? Can anyone define? It stores similar data. Collection of similar type of data. So that similar type of data can be integer. Can it be integers? Yes. 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 Can Yes. it be character constant? Yes. Can it be string constant? Yes. Can it be pointers also? Yes, sir. Yes. That means what? ये जो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स जो है ये डिराइव कहाँ से हुए हैं? प्रिमिटिव से। इसीलिए उसको कहा गया है कि दे आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। डिराइव्ड मतलब प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से ही उनका स्ट्रक्चर बनता है। जो एरे हो, लिस्ट हो या फाइल्स हो, ये सारे के अंदर इनमें से कोई ना कोई तो एक कॉम्बिनेशन में रहेगा। अगर फाइल है तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस, अगर एरे है तो इनमें से कोई एक रहेगा उसके अंदर। लिस्ट है तो इट माइट बी सेम और इट माइट बी कॉम्बिनेशन आल्सो। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Clear with this? Can we go to next slide? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Everyone I'm asking. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Next slide is this. Yes, sir. पढ़ो इसको। Important है ये। And ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। खत्म हो गया। 5 मार्क के लिए पक्का क्वेश्चन है, फोटो लेके रखो इसका चाहिए तो 5 मार्क के लिए आएगा ही आएगा। अगर जो आंसर 10 मार्क कर दो। पास होगा पहले बोल दे रहा हूँ। Describe how unit 2 ends. हाँ, Okay. the end. स्क्रीनशॉट ले लिया। सर ये सर आपने लॉक किया है क्या मीटिंग को? क्या बोल रहे बेटा? सर मीटिंग लॉक है क्या? नहीं रे बेटा, मैं कभी लॉक करना नहीं रहा ऐसा। मेरे को पसंद नहीं है लॉक के रख लो। सर क्या है ना बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। नहीं रे बेटा, जो डिस्कनेक्ट हुआ तो नेटवर्क का इश्यू की वजह से होगा, लेकिन तू वापस ज्वाइन कर पा रहा है ना? सोच रहा था एक बार पूरा डिस्कनेक्ट करके वापस करूं क्या कनेक्ट में? चलेगा बेटा, पूरा लेग डिस्कनेक्ट हो जा, पूरी तरह से एंड कर दे, तब तक मैं खाली यहाँ पे वापस से रिपीट करूंगा जो भी किया हम लोग, ठीक है? तो मीटिंग को लीव करके वापस ज्वाइन कर चलेगा, नो प्रॉब्लम। इफ यू आर गेटिंग फ्रीक्वेंट डिस्कनेक्शंस देन यू कैन लीव द मीटिंग। थैंक यू सर। ओके बेटा, आजा। नाउ इन द मीन टाइम द पर्सन जॉइंस, लेट मी just check whether we completed all the topics in unit 2. Last topic was
इम्प्लीमेंटिंग अदर डेटा स्ट्रक्चर्स, उसके पहले हमने स्टोरेज ऑफ स्पार्स एरे देखा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल देखा था, एप्लीकेशंस ऑफ लिंक लिस्ट देखा था, हेडर लिंक लिस्ट, फिर डिलीटिंग अ नोड फ्रॉम टू वे लिंक लिस्ट, एन एलिमेंट टू द टू वे लिंक लिस्ट, किया था ये सब। Yes, sir. Yes, sir. So I would Yes, sir. request everyone, rather not only few but everyone, to keep a hard copy if possible, or some other way this syllabus का copy, so that we can know, you can let me know कि कौन सा topic miss हुआ है क्या। समझ में आया? अगर समझो मैंने आज जो भी सीखा है मैंने उसका अगर स्क्रीनशॉट लिया रहेगा तुमने हर एक स्लाइड का, और तुम सिलेबस में कंपेयर करके देखो कौन सा टॉपिक मेरा मिस हो गया रहेगा। सपोज मैंने लिंक लिस्ट स्टार्ट किया मैंने, ठीक है, लिंक लिस्ट स्टार्ट किया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, यहाँ तक हो गया, फिर उसके बाद मैंने डिलीशन ले लिया स्लाइड में, तो तुम बोलोगे मेरे को नेक्स्ट लेक्चर में कि सर लास्ट लेक्चर में मेमोरी एंड डीएलोकेशन जो था और इंसर्शन था ये हमने कवर नहीं किया था, so that it will be easier for me to teach you। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इफ पॉसिबल अगर प्रिंट आउट प्रिंटर है घर पे तो प्रिंट आउट लेके रख लो, अगर प्रिंट आउट नहीं है तो सिलेबस का कॉपी पीडीएफ में ले लो और फिर बाद में खाली कंपेयर करके ले लो। लेक्चर के बाद करोगे तो भी चलेगा, लेकिन उसी दिन करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक, तो वी आर डन विद द यूनिट 2 आल्सो नाउ, देन वी आर स्टार्टिंग विद द यूनिट 3। होपफुली यूनिट 1 एंड 2 में डाउट्स कुछ नहीं रहेंगे किसी का। मैं ये पीडीएफ दे दूंगा पूरा आज क्लासरूम में। समवन पिंग मी पर्सनली और रिमाइंड मी फॉर दैट, पोस्टिंग इट इन गूगल क्लासरूम, आई विल पोस्टिंग इट, एंड यू कैन गो थ्रू ऑल दिस यूनिट 1 एंड 2, बिकॉज अगर इंटरनल्स होगा तो यूनिट 1 एंड 2 दोनों रहेगा इंटरनल्स में। ओके, Yes, sir. नाउ वी विल स्टार्ट विद यूनिट 3। Can anyone tell me what was the heading of Unit 3? नाम क्या था Unit 3 का? Stack. Tags, Stacks. tags and keys. Can anyone define stack क्या होता है? Popping out the elements in order which they are come. क्या बोला बेटा? Pop out the elements in order they are come. Elements को Pop. Removing the elements in order they are come. in order। Push and pop होता है सर वो स्टैक में। क्या 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 होता है बेटा? क्या होता है? पुश और and pop. पॉप होता है। Push and pop। मुझे लगा तू डांस की बात कर रही है। पॉप क्या यार? Push and pop। What do you mean by that? मतलब पुश मतलब कि कुछ एड्रेस है वो डालने का, और पॉप मतलब निकाल देने का। ओके 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 ओके। तुम लोग कभी ये जो पुश एंड पॉप कंसेप्ट, ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, पहले पिक्चर स्टार्ट कर देता हूँ, बाद में तुम लोग को समझाता हूँ मैं क्या ये करके। दिख रहा है? Yes. नाम तो सुना होगा ये, Yes. हाँ ठीक है? सर। ओके ठीक है, थैंक यू। ये क्या है? Unit 3. Unit 3. Unit 3. फोटो लेके रखो, एग्जाम में आएगा पक्का ये भी। जैसे यूनिट 2 एंड हो गया यूनिट 3 स्टार्ट हो जाएगा। नाउ स्टैक। स्टैक इज नथिंग बट अ वर्टिकल क्यू, यू कैन से दैट। वर्टिकल क्यू मतलब सर क्या दिख रहा है अभी? वाइट स्क्रीन दिख रहा है। वाइट स्क्रीन दिख रहा है। अच्छा। Whiteboard. दिख रहा है? ओके, ये है मेरा, क्या ये? क्या ये? कुछ दिख रहा है यहाँ पे? ड्रॉ किया मैंने कुछ, Yes, sir. हाँ सर सर। क्यूब्स, बहुत सारे क्यूब्स ड्रॉ किए। बहुत सारे क्यूब्स। क्यूब्स। लेकिन अगर इसको डेटा स्ट्रक्चर में बोलूं तो ये क्या है? ये
linear, लिंक है सर, लिंक। अरे नहीं रे बेटा, डेटा स्ट्रक्चर में कौन सा स्ट्रक्चर है ये, कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने? linear, Linear. लीनियर Linear. लीनियर। लेकिन लीनियर क्या होता है? linear data structure, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मानता हूँ, लेकिन कौन सा नाम क्या था इसका? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का नाम क्या है इसका? linear array, अब तो मालूम पड़ना चाहिए, एरो ड्रॉप किया तो मैंने। क्या होगा ये? एरो ड्रॉप किया है linear मैंने, linked list, लेकिन नाम क्या है इसका? टेक्निकल नेम क्या है? लीनियर लिंक लिस्ट, ये उसका बोलते हैं ना कंसेप्चुअल नाम है, लेकिन टेक्निकल नाम क्या है इसका? First in, last out. हाँ, फर्स्ट इन लिस्ट। फर्स्ट इन लास्ट आउट। FIFO, ऐसा कभी होता है क्या? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कौन होता है ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला? फीफो। अरे बेटा, फीफो में फुल फॉर्म पता चला है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर का कौन सा कंसेप्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को इम्प्लीमेंट करता है? Stack वाला. हाँ, Stack वाला. स्टैक वाला। queue, कौन कौन कौन? किसने बोला अभी? क्या बोला अभी? क्यूब। क्यूब बोला किसने अभी? क्यूब बोला? यस सर, क्यूब ही बोला। Q बोला sir. क्यूब बोला, क्यूब। cube नहीं बे, आइस cube, क्यूब या चीज क्यूब या बटर क्यूब? नहीं, Singular. क्यूब क्यूब cube है, line वाला cube, क्यूब क्यूब क्यूब। ये बे कौन बोलने वाला है बे? क्यूब बे करके? कौशिक, विनीत 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 विनीत। विनीत बंगेरा। क्यूब बे। मैंने कौशिक बे बोला पहला, मैंने नहीं बोला है कुछ भी। क्या पका रहा है, सब लोग ने सुना। तेरा ही आवाज था, वो क्यूब बे के टाइम पे तेरा यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रहा है। एनीवेज, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज अ क्यूब लाइन। ऐसे होता है ना, लाइन में लास्ट में एंट्री मारते हो एक साइड से, और जैसे तुम्हारा नंबर आगे आगे आते जाता है, टिकट ले लिया, क्या करोगे? वहीं पीछे देखने पड़ जाओगे? नो सर। नहीं, क्या करते फिर हम लोग वहां से? फिर निकल देते हैं. निकल जाएंगे ना, निकल जाएंगे। हाँ, कल्टी मार लिया ना। तो यस सर। तो ये होता है मेरा एंड, जहां से मेरा एलिमेंट बाहर निकलता है, बराबर बराबर। तो मैं इसको, ये पार्ट को ऐसे, पूरा निकल गया, ओके। एनीवेज, ये जो ऊपर का पार्ट दिख रहा है ना, ये लाइन को मैं निकाल देता हूं, मतलब इसमें वापस से लाइन कैसे दिखाते लिखने के लिए? या मुझे वापस से शेयरिंग स्टॉप करके नया शेयर करके करना पड़ेगा? नहीं सर, उधर एनोटेट वाला वो जो उसमें आता है तो ड्रॉ करके आता है, तो उसमें हम बार बार कर सकते हैं. हाँ, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है ना। यहाँ पर व्हाइट बोर्ड सिलेक्ट किया मैं, आया। हाँ, समझा। व्हाइट बोर्ड पे वापस से क्लिक करना पड़ता है। नाउ आई एम ड्राइंग इट वन मोर। दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. वैसे ये है, क्यू ही है, लेकिन इस क्यू को अगर मैं
वर्टिकली इरेक्ट कर दूं, ऐसा दिख रहा है ये? यस सर। Yes. यस सर। यस सर। अगर मैं इसको वर्टिकली इरेक्ट कर दूं तो ये बन जाता है मेरा स्टैक। ये भी लीनियर ही है, एक टाइम पे एक ही, मल्टीपल नहीं हो सकता, और यूनिडायरेक्शनल रहेगा, ये एक ही डायरेक्शन रहेगा क्योंकि इसका दूसरा एंड देखोगे तो क्लोज है वो। इफ यू चेक एट द अदर यस एंड सर। closed, so it has to go from one way and it has come out from that way only. मतलब स्टार्ट भी वही और फिनिश भी वही है। तो जब मैं इसके अंदर वैल्यू को इंसर्ट करता हूं तो वो प्रोसेस क्या होता है अनीता? पुश। और कोई एलिमेंट अगर बाहर आता है तो वो क्या हो जाता है? पॉप। पॉप। ओके, नाउ पुश मतलब क्या? फॉर एग्जांपल लोकल ट्रेन में ना ट्रेवल किया रहेगा ना कभी, मतलब ये मार्च के पहले, तो वहां पे देखो तुम लोग हाँ सर। कॉलेज आने के लिए ट्रेन में क्या करते हो? ट्रैवल करते हो, लेकिन कैसे? पहले टिकट लेते हैं। नहीं, प्लेटफॉर्म पे आ गए, सपोज प्लेटफॉर्म पे आ गए, स्टेशन पे खड़े हो, ट्रेन का वेट कर रहे हो, ट्रेन आ गया तो तुम ट्रेन में चढ़ते हैं। ट्रेन में चढ़ते हैं, लेकिन तुम खुद चढ़ते हो, पब्लिक चढ़ा देती है? पब्लिक ही चढ़ा देती है सर। पब्लिक सामने खड़े रहो, देखना पब्लिक अपने आप चढ़ा देगी। तो पब्लिक क्या करते हो? पुश। पुश करते हैं। क्यों पुश क्यों करते हैं? अभी अंदर जाना होता है। अंदर जाने को। इंसर्ट करने के लिए, बराबर? यस सर लेकिन बाहर आना है तभी तो पुश ही करते हैं, दरवाजे पे स्टेशन आने के पहले ही धक्का मारना चालू कर देते हैं सर, वहां पे भी तो पुश करते हैं ना। वो पता है वहां पे भी पुश करते हैं, लेकिन वहां पे वो कंसेप्ट अलग होता है। यहाँ पर मतलब क्या हो गया कि इफ यू वांट टू इंसर्ट द एलिमेंट ओवर हियर देन यू कॉल पुश, इफ यू टेक इट आउट इट इज कॉल्ड एज पॉप। ओके, नाउ हम लोग जब थिएटर में जाते हैं ना मूवी देखने के लिए, वहां पे अपना फेवरेट टाइम पास कौन सा रहता है? जो मार्केट पे बाहर कहीं नहीं मिलता लेकिन थिएटर में बहुत अच्छा मिलता है, ज्यादा मिलता है, पब्लिक वही खाते हैं। पॉपकॉर्न। क्या होता है? पॉपकॉर्न। Okay, can anyone tell me what is the actual name of that item, of that food substance? एक्टिव पॉपकॉर्न। अबे साले कंपनी का नाम मत दे, तू ब्रांड को एंडोर्स मत कर, पता है तू ब्रांड एम्बेसडर है। तेरे घर पे हर दिन फ्री में आके डिलीवर करके जाता है जोमेटो स्विगी वाला। कौन? उसका एक्चुअल नाम क्या है? मकई। मक्काई। कौन है भैया मक्काऊ वाला? ये कौन है? ये मक्काई। मेज। उसका एक्चुअल नेम क्या है? मतलब हम लोगों ने उसको पॉपकॉर्न बना दिया, जब उसको एक्चुअल में लेते हो मार्केट में, जब लेने जाते हो तो क्या बोलते हो? भुट्टा। भुट्टा। उसी भुट्टे से फेंक के मारेगा तेरे को, मैं मेरे घर पे है भुट्टा भी लाया मैं कल ही, मारेगा पकड़ के तू? बोलेगा हाँ सर मारो, खा लूंगा मैं। What do you say? उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉर्न। क्या बोलते हैं? कौन? It is simply called as corn. लेकिन उस कॉर्न को अगर तुम उस वेसल में डालोगे तो क्या हो जाता है वहां पे? कॉर्न वो पॉप हो जाता है। पॉपकॉर्न होता है। पॉपकॉर्न हो जाएगा। पॉपकॉर्न एक्टिव पॉपकॉर्न हो जाएगा। देखा है तुमने उसको बनते हुए? हाँ सर। यस सर। यस सर। पॉप होते हैं वो। बनता है ना, जैसे लोग उसको डालते हैं ना, तो कॉर्न क्या करते हैं वहां पे? फूट जाते हैं। उछलते हैं, उड़ जाते जंप फूट जाते। करते हैं। पॉप होते हैं। करते हो लोग, डांस करते हैं वहां पे, देखा है? उछलना नाच करते हो लोग। तो उछलना Yes, मतलब हाँ वो क्या करना चाहते हो लोग? उछल रहे मतलब क्या कर रहे हैं? खुश हो रहे बाहर सर, हम लोग के निकलना पेट में जाएंगे ना। पॉप हो रहे हैं। खुश होंगे बेटा, खुश होंगे। रुक जा अभी तेरे थाली में से छीन के खाता हूँ, रुक देखता हूँ तो कितना खुश होता है। फॉर एग्जाम्पल गोलमाल कितने लोगों ने देखा है? गोलमाल सीरीज
बहुत बार सब लोगों ने देखा सर देखा है सर। यस सर। बहुत ये बार सर कारगिल देखा पे है। तो वही लगता सर पूरा दिन। हाँ, गोलमाल 3 या 4 शायद से, 4 शायद से, हाँ। उसमें देखा है तुषार कपूर को वो लोग उठा के ना मारने के टाइम पे कुछ तो करते उसको, तवे पे बिठा हवे पे बिठाते हैं। सीधा से बिठाते हैं। तो तुषार कपूर क्या करते हैं, वाह अच्छा लग रहा है ना, मजा आ रहा है ना। नहीं, नहीं आवाज निकल सर वो और पॉप अगर होता है ऐसे। सपोज तुमको अगर बिठा दिया, कितने लोग तुमको 1 मिनट तक बैठे रहोगे ऐसे गर्म तवे पे, 1 मिनट बैठ जाओ, तुम्हारी जिंदगी भर का खाना मैं स्पॉन्सर करेगा आराम से, जैसे सिंगल लेयर कपड़ा दे दिया, सिंगल लेयर। जिंदगी भर बैठने के वांदे हो जाएंगे। और कौशिक कर सकते। Can you sit over there on that hot pan? नो सर No. नो सर। तो No, sir. तो नो सर अगर नो। गलती से घर पे अगर बर्तन को टच भी कर लिया तुमने, तो व्हाट डू यू डू? चिल्लाने लगता है। हद होती है फटाफट। जोर से चिल्लाता है। रिफ्लेक्स एक्शन, फट से हाथ निकाल लेते हैं। जोर से चिल्लाते हैं, कौन बोला जोर से चिल्लाते हैं करके? कौशिक कौशिक। हाथ वही रखता है सर वो, और जोर से चिल्लाता है। वही पूछने वाला था मैं, चिल्लाता है लेकिन हाथ वहीं रख देता है, कि उसको चिपका के रख देता है, क्या अच्छा लग रहा है करके चिल्लाते हुए? नो सर नो सर नो। So what you do immediately? You take your hand out. That means what you're doing? रिफ्लेक्स एक्शन। reflex act. Reflex action, agreed. But that reflex action is you're making your hand pop out from that vessel, pop out from that pan. Similarly, the corn which were put in that hot vessel, they are popping out. समझ में आया क्या? सर अगर उसको यस सर। वो पॉपकॉर्न के मशीन को इलेक्ट्रिक पे चलता है ना वो, अगर उसको चालू नहीं करोगे ना और उसमें कॉर्न डाल के देखो, वो भी मस्त आराम से बैठे रहेंगे। हाँ अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है, मजा आ रहा है, वाह एंजॉय। जैसे चालू कर दो, अरे क्या कर दे रहे बाबा, ये गर्म हो रहा है, चलो उठो। समझ में आया क्या? यस सर। So that is nothing but the concept of pop. समझ में आया everyone? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Push and pop. Clear everyone with this concept? यस यस सर। सर। Yes, sir. देखा तुम लोग को पॉपकॉर्न खिलाया, पिक्चर दिखाया, गोलमाल बताया। सर आपके ही लेक्चर में मजा आता है। ये तो हर लेक्चर में ऐसे ही बोलते, समझा ना? अभी पका मत अभी, नहीं मिला के सुबह सुबह। नहीं सर किसको भी नहीं बोलता सर, सच्ची में। अरे बस नहीं, तो यार, बस 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 बस। सबको बोलता है आज मेरे फेवरेट हो बोलता है सबको। उतारते रहा हूं तो ऐसे बाटली में उतारेगा तू मेरे को? नो सर। एनीवेज सी हर एक का तरीका अलग अलग रहता है पढ़ाने का भाई। मेरा तरीका ऐसा है, ओके? किसी को पसंद रहेगा, किसी को बोर होता रहेगा, इट्स ओके, बट मेरा तरीका ऐसा है, पहले जनरल कंसेप्ट समझाओ, एग्जांपल दे के अच्छे से, तो जनरल कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो बच्चों को आराम से समझ में आ जाएगा। मतलब कल को अगर तुम लोग पॉपकॉर्न लोगे तो आप चिल्लाना मत, ये स्टैक है करके, तो बेचारा डर जाएगा बेचने वाला। काउंटर पे बोलेगा स्टैक है, तो वो बोलेगा आई नो इट इज द स्टैक वेयर यू आर पुशिंग एंड पॉपिंग। क्या बात कर रहा है तू? भी आईटी है? हाँ आईटी ग्रेजुएट बन के हम पॉपकॉर्न बेच रहा हूँ। अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो, ओके? क्लियर विद दिस एवरीवन? कंसेप्ट पुश एंड पॉप? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Okay. Now, what is push and what is pop? Just read over here. Stack. क्या होता है stack? एक मिनट, जस्ट इसको मैं अलाइन कर दो प्रॉपरली, जस्ट अ मोमेंट। Visible? yes, sir. यस सर। Yes, sir.
Now, what is stack? Read. It is a linear DS which follows the particular order in which operations are performed. So, order it follows is LIFO or FILO. FILO, it is not used. It is basically LIFO only. Adding or removing element in a particular order. Clear everyone till here? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next, operations is push and pop. Pado. फाइव सिंपल पॉइंट्स जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं. बाल्टी भर रहा हूं मैं, नल चालू किया है तो चालू रख देता हूं ऐसे भरने के लिए. आवाज आ रहा है मेरा? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. बाल्टी भर गया भाई, बाल्टी भर गया तो क्या करोगे? नल बंद कर दो, नल बंद कर देंगे. क्यों बंद करेंगे हम लोग? ओवरफ्लो होएगा. Overflow. ओवरफ्लो हो रहा है मतलब मैं कैपेसिटी से ज्यादा देने की कोशिश कर रहा हूं तो वो ओवरफ्लो ही होगा. मतलब अगर मैं तुमको बोल दूं कि SYA में तीनों लेक्चर डेटा स्ट्रक्चर ही रहेगा विदाउट ब्रेक कंटिन्यूस फॉर 150 मिनट्स, 2.5 घंटे का पिक्चर रहता है तो ऐसा 2.5 घंटे का मेरा पिक्चर रहेगा. तो ऑब्वियसली इंटरवल के पहले ही सब लोग ओवरफ्लो हो जाओगे. बराबर? क्यों? Yes. Because I am trying to insert 150 minutes in 50 minutes. So 100 minutes का जो ज्ञान है वो बह जाएगा. बोलते हैं ना गंगा में बह जाएगा वो. So that is what overflow is. It is that process where you are trying to utilize more memory than available. लेकिन उसका ऑपोजिट क्या होता है? और अंडरफ्लो. अंडरफ्लो मतलब मैं निकालने को देख रहा हूं लेकिन वहां पर है ही नहीं. ओह सॉरी. दैट मींस आई एम ट्राइंग टू एलोकेट अ मेमोरी बट मेमोरी इज नॉट अवेलेबल. दैट इज नथिंग बट एन अंडरफ्लो. एंड मेमोरी ऑफ स्टैक इज डायनेमिक. डायनेमिक मतलब चेंज होते रहता है. it depends on the number of elements being pushed or popped and it adjusts accordingly. That means कि तुम लोग के पास अगर स्टार्टिंग में 10 एलिमेंट्स है तो उसका साइज 10 रहेगा, लेकिन तुमने कुछ देर के बाद उसमें से 3 निकाल दिया तो 7 हो जाएगा. उसमें और तुमने 10 ऐड कर दिया तो 17 हो जाएगा. तो इट इज अ डायनेमिक स्ट्रक्चर. That means it is you can say that वेरी होता है लेकिन. इलास्टिक का पैंट रहता ना अपना ट्राउजर. यस सर. यस, इलास्टिक का पैंट या बरमुडा ले लो, जहां पर 32 भी फिट हो जाएगा, 28 भी फिट हो जाएगा, 36 भी आ जाएगा. बराबर? Yes, sir. Yes, sir. That kind of thing. It is a dynamic. Clear with this slide, everyone? यस सर. Yes, sir. Can we go to next slide? Yes, sir. Yes, sir. ये है मेरा कंसेप्ट ऑफ स्टैक. डेटा एलिमेंट यहाँ पर है, पुश करो पुश करो पुश करो, और पहले कौन बाहर आएगा? डेटा एलिमेंट. अरे कौन सा डेटा एलिमेंट बाहर आएगा? नीचे वाला या ऊपर वाला? ऊपर वाला. ऊपर वाला. मतलब जो लास्ट में एंट्री मारा वही पहले एग्जिट मारेगा. बराबर? Yes, sir. तो ये देखो यहाँ पे डेटा एलिमेंट इंसर्ट हो गया, तो ये जो डेटा एलिमेंट इंसर्ट हुआ है ना वही पहले पॉप होगा, फिर उसके बाद सेकंड वाला, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ. सो दैट मीन्स जो इंसर्ट होते जाता है वो नीचे चला जाता है, फिर जो ऊपर रहता है सबसे वो सबसे पहले आएगा, फिर उसके नीचे वाला आएगा,
फिर उसके नीचे वाला आएगा। अरे शादी का प्लेट देख लो ना यार, शादी में प्लेट रखा रहता है ना केटरिंग वाला, ऐसे ही रखता है ना वो तो। यस सर यस सर आप लोगों को याद है यस सर। पहला दूसरा लेक्चर था तब मैंने एग्जांपल दिया था तुम लोगों को स्टैक का, हाँ शादी का। सर, हाँ सर हाँ याद है सर। लाइन में खड़ा है। याद रहेगा तो यस सर यस। है। तो वही शादी का कंसेप्ट यहाँ पर इंप्लीमेंट होता है इन द स्टैक। क्लियर विद दिस एवरीवन? यस सर। कैन वी गो टू नेक्स्ट? यस सर यस सर। यस सर नाउ एग्जांपल ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन। Yes, sir. Yeah. समझ में आया क्या? ये है मेरा टॉप। टॉप क्या होता है ना कि मेरा एक पॉइंटर रहता है। हर एक स्टैक में ना तीन तीन फिक्स रहते हैं, पुश, पॉप एंड टॉप। अब पुश क्या करता है, सपोज ये मेरा स्टैक है, ये एम्प्टी है, ठीक है, इतने एलिमेंट्स है मेरे पास और ये खाली है। खाली रहेगा ना तो टॉप का वैल्यू क्या रहेगा मेरा -1। मतलब जैसे -1 हो जाता है टॉप का वैल्यू समझने का, वो एम्प्टी हो गया। जैसे यहाँ पर कुछ ऐड करता हूँ, सपोज यहाँ से ऐड किया 1 ऐड, यहाँ पे मैं समझो a ऐड किया, जैसे a ऐड कर दिया ये टॉप का वैल्यू हो जाता है t -1 +1। +1 मतलब एक एलिमेंट आ गया, तो t का वैल्यू क्या बन जाएगा? जीरो। 0। जीरो। दैट मींस ये 0th एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। t = 0 मतलब एक एलिमेंट है मेरा स्टैक में। फिर मैंने दूसरा इंसर्ट कर दिया b, फिर मेरा t हो जाएगा t++। तो ये t++ मतलब क्या हो जाएगा? 1 + 1। तो t का वैल्यू मेरा 1 हो जाएगा, मतलब ये मेरा सेकंड एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। मतलब स्टैक में 2 एलिमेंट्स हैं, कभी भी तुम्हारा t ब्लैंक को पॉइंट नहीं करेगा। जितना t का वैल्यू है उतने एलिमेंट्स है, +1 ना ऑब्वियसली। समझो t का वैल्यू मेरा 5 है, टॉप का वैल्यू मेरा 5 है, तो उसके अंदर टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। समझ में आया यस क्या? सर। यस मैंने सर। हाँ सर। हाँ, ये मेरा टॉप एलिमेंट है। इंसर्शन ऑफ 4 दैट इज पुश, यहाँ पर मेरा पुश कर दिया, तो अब मेरा टॉप जो है वो मेरा 4 को पॉइंट करेगा। पहले क्या कर रहा था, उसके पहले वो किसको पॉइंट कर रहा था, वो पहले उसके पहले 1 को पॉइंट कर रहा था यहाँ पे। 1 लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया तो 1 तो नीचे चला गया, तो ये 4 ऊपर आ गया, तो ये अभी वो t उसको 4 को पॉइंट करेगा। लेकिन वो प्लेट 4 नंबर का प्लेट किसी ने उठा लिया शादी में, तो जैसे ही किसी ने उठा लिया वापस से मेरा पॉइंटर कहाँ आ जाएगा, या तो टॉप कहाँ आ 1 जाएगा, को पॉइंट करेगा। 1 को पॉइंट करेगा। समझ में आया? यस। यस सर। डिलीशन इन स्टैक कंसेप्ट खाली, टेक्निकली प्रैक्टिकली बाद में करेंगे वो सब। सबको समझ में आया? Yes, sir. यस सर। कैन वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड? Yes. यस सर। यस सर। देख लो, पढ़ लो, ये मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये सब किया हुआ है, पढ़ो। Any doubt in any point you can ask. Hopefully नहीं रहना चाहिए, but still if you have then you can ask. Done, sir. हो गया सब। Okay.
Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. हेलो सर, हाँ बोलना बेटा। वो एरे कस्ट पॉइंट है ना, हाँ इट कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑप्शन वाला, हाँ, कौन सा पॉइंट? उसमें उसमें लास्ट पॉइंट एरे का, हाँ हाँ उसमें जो ट्रैवर्सिंग लिखा है ना, हाँ हाँ। इसका मतलब क्या है? ट्रैवर्सिंग मतलब एक छोर से दूसरे छोर पर जाना। मतलब रुक जा बता तुमने, ठीक है। दिख रहा है अभी व्हाइट बोर्ड सबको? ये Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है। हाँ, ये है मेरा क्यू, ठीक है। और ये है मेरा क्यू। यहां से एंट्री मार रहे हैं पब्लिक, यहां से एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है। अब तुम लोग कभी डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो वहां पे तुम लोग को ना नंबर देता हो, नंबर। अगर तुम गए रहे डॉक्टर के पास तो नंबर मतलब हाँ मोबाइल सर, नंबर, अपॉइंटमेंट का। Appointment. मोबाइल नंबर देता है ना वो। नंबर मतलब Appointment. number. अपॉइंटमेंट देता का है तो। देते हैं। अपॉइंटमेंट नंबर है तो फिर टोकन नंबर देता है वो। तो वहां पे तुम लोग टोकन नंबर देता मतलब वहां पर तुम लोग क्या कर सकते हो? तो जब तक हम नंबर नहीं आ जाता तब तक बैठना पड़ेगा। हाँ, नंबर बैठना पड़ेगा। तो तुम उसको क्या पूछते हो, कितना नंबर चालू है? मतलब उसने 10th नंबर दे दिया मेरे को, मैंने पूछा बोल के तो 1 घंटा हो गया ना डिस्पेंसरी क्लिनिक, तो अभी कितना नंबर चालू है? तो बोला चौथा पेशेंट गया हुआ है और तुम्हारा 10वां है। तो तुमने क्या किया वहां पे? चेक किया ना, चौथा गया है मतलब बाहर 5वां बैठा है, 6ठा बैठा है, 7वां बैठा है, 8वां बैठा है, 9वां बैठा है और 10वां मैं हूं। तो मैं ये क्या किया, ट्रैवर्सिंग किया। ये समझ में आया क्या? ये हाँ। मेरा चौथा पेशेंट बैठा हुआ है, ये 5वां बैठा हुआ है, ये 6ठा हुआ है, ये 7वां है, ये 8वां है, ये 9वां है और मैं यहाँ बैठा हूँ 10वां। तो मैंने क्या किया, मैंने इस एरे को, ये एरे ही है ना, तो कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, पेशेंट ही बैठेंगे ना Yes, वहाँ yes. पे। कोई ऐसा तो नहीं ना कि यूनिक वॉक करते करते मैं डॉक्टर के हाँ। पास गया ऐसे बैठने के लिए। ऐसा नहीं कि फैमिली No. पिकनिक पे गया था, अभी देखा डॉक्टर का डिस्पेंसरी गया पिकनिक में, तो मैं यहाँ पे डिस्पेंसरी में घुस गया, हॉस्पिटल में घुस गया, ऐसा नहीं। यहाँ पर कौन लोग बैठे हैं? सब पेशेंट लोग ही बैठे हैं जो किसी न किसी बीमारी से त्रस्त हैं या ग्रस्त हैं। तो वो लोग को मैंने काउंट किया, तो ये चौथा पेशेंट अभी जाएगा, ओके, ये 5वां है, 6ठा है, 7वां है, 8वां है, 9वां और मैं 10वां हूँ। तो ये मैंने क्या किया, उसको ट्रैवर्स किया। लेकिन स्टैक में ये पॉसिबल नहीं है। स्टैक में और कौन सा वैल्यू है वो भी तुम चेक कर सकते हो। यहाँ पे कौन सा वैल्यू है वो चेक कर सकते हो तुम यहाँ पे ट्रैवर्स करते हुए। ओके, ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर है, ये 7 नंबर है, 8 है, 9 है, 10 है, मतलब कौन है वो भी चेक कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। छोटा बच्चा है या बुजुर्ग है या लेडीज है या जेंट्स है या क्या है वो, तो मुझे अंदाज आएगा कि कितना टाइम लगने वाला है करके। लेकिन स्टैक में क्या होगा, यही नंबर अगर मैं स्टैक में लिख दूं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो मुझे सिर्फ ऊपर का नंबर दिखेगा, नीचे का कुछ भी नहीं दिखेगा। समझ में आया क्या? और Yes, मैं sir. नीचे नीचे जा भी नहीं सकता, मैं ट्रैवर्स भी नहीं कर पाऊंगा मैं, तो मुझे सिर्फ टॉप दिखेगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ। Yes. क्लियर विद दिस एवरीवन? Yes. Yes. तो इंसर्शन, डिलीशन, ट्रैवर्सिंग, सॉर्टिंग, सर्चिंग, मर्जिंग सब कर सकते हो, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही रहेगा, पुश ऐड करने के लिए, पॉप रिमूव करने के लिए। उसके अलावा कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम स्टैक में। वो एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं ये भी नहीं देख पाओगे तुम। समझ में आया क्या? तो अगर देखना है तुमको, फॉर एग्जाम्पल
ये जो एलिमेंट था मेरा यहाँ पे, ये अगर मैं लिस्ट है, ये एरे है एरे, और वो 7 प्रेजेंट है या चेक करना है, तो मैं चेक कर सकता हूँ क्या एरे में? यस सर। यस सर। लेकिन वो स्टैक में करना रहेगा तो सर कर तो सकते हैं हम लोग, लेकिन मुझे हर एक नहीं होगा। हर एक को निकालना पड़ेगा। मतलब चेक करूंगा मैं, हाँ सर। 10 है, सर्च कर रहा हूँ मैं 7 इक्वल टू 10 नहीं है, तो इसको निकाल दो, और अगर निकल गया तो वापस नहीं आएगा वो। फिर मैंने चेक किया, ये वैल्यू को निकाला मैंने, ये चेक किया 9 इक्वल टू 7 नहीं है, इसको भी निकाल दो। So that means I am wasting the elements unnecessarily which are there to process. So that is the reason they say over here searching, sorting, building यहाँ पर possible नहीं है स्टैक में। समझा सबको? Yes, sir. यस सर। यस सर। Everyone? यस सर। सर Now operations on stack, push and pop. पढ़ लो फटाफट खाली, हम लोग नेक्स्ट टाइम पूरे डिटेल में करेंगे उसको। तो सुन वो है ना, क्या हुआ बेटा? देख ना मेरे दोस्त ने ना पंखा कूलर बना रहा था, तो उसके बाद एक और डब्बा था वो उठा लिया मैं। क्या पगला गया रत्नाकर? माइक ऑन रह गया था सर माइक ऑन करके रखा है। सर, माइक ऑन रखा था उसका। बेटा अगर सबका माइक ऑन कर दिया ना तो यहाँ पर ना वो जोक का कॉमेडी सर लाइफ सर्कल कॉमेडी सर्कल सर बनता है। हाँ सर। हर एक के घर की कहानी है बेटा। भाई मेरे घर पे कोई नहीं इसलिए अलग बात है, मैं अकेले चिल्ला रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे घर पे भी कोई रहेगा तो हो गया, फिर तो मैं लेक्चर भी नहीं ले पाऊंगा, फिर मुझे कहीं गार्डन वार्डन ढूंढना पड़ेगा फिर लेक्चर के लिए। वो भी खा लेने। वापस कोई नहीं चालू करेगा। रोशन. अरे नहीं मैं नहीं हूँ। बराबर तू नहीं रे, तू वो नहीं है, दूसरा था, मैंने उसका मुंह बंद कर दिया, नीचे मत ले। पढ़ लो फटाफट। पोस्ट ऑपरेशन इन्वॉल्व द सीरीज ऑफ स्टेप्स, दैट इज चेक करो स्टैक फुल है कि नहीं, अगर फुल है तो बता दो वहां पर हाउसफुल, अगर नहीं है तो टॉप को इंक्रीमेंट करो और उस डेटा को ऐड कर दो। अगर वो हो जाता है वैसा तो बोल दो कि एलिमेंट एडेड, अगर नहीं होता है तो वहां पर एरर दे दो, अगर फुल है तो फुल या कुछ और है तो और। दैट इज नथिंग बट द पुश। ओके, रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर देन। यस सर। ये लॉक में ज्यादा ही कर दो ना। अरे अनिकेत क्या यार, पब्लिक भी ना। आया अटेंडेंस लिंक? Yes, sir. यस सर। అంటే ఆటనే యాక్టివిటీ फटाफट leave the meeting and get ready for next lecture. Meet in next lecture everyone. Stay home, stay safe, take care बच्चे लोग, bye bye.